सीरियस कविता, इससे शायद थोड़ी ज्यादा गजल कह सकते हैं इसको, बहुत सीरियस कविता है કે છેલ્લે છેલ્લે બધું બગડી ગયું હતું, છેલ્લે છેલ્લે બધું બગડી ગયું હતું, એ કૂતરું દર ખૂણે મૂતરી ગયું હતું. વાર લાગશે આવતા, પણ છેલ્લે છેલ્લે બધું બગડી ગયું હતું, એ કૂતરું દર ખૂણે મૂતરી ગયું હતું ને એનું બ્રીડિંગ કરાવવા મારી ગર્લફ્રેન્ડ ગયેલી. ને એનું બ્રીડિંગ કરાવવા એટલે લઈ ગઈ હતી એમ યાર. સો એ કૂતરું ઘરના દર ખૂણે મૂતરી ગયું હતું ને એનું બ્રીડિંગ કરાવવા મારી ગર્લફ્રેન્ડ લઈ ગયેલી. હું પહોંચ્યો ત્યાં સુધી તો બધું પતી ગયું હતું. જેલમાં બંધ પેલા સાધુઓના સોગંદ છે આપણે. જેલમાં બંધ પેલા સાધુઓના સોગંદ, હું નહીં એ જ્યોત્સનાને અડી ગયું હતું. હું નહીં એ જ્યોત્સનાને અડી ગયું હતું ને ઠાઠડી મંગાઈ એના માટે ચંદનની, ને ઠાઠડી મંગાઈ એના માટે ચંદનની. પછી ખબર પડી હરામખોર ઊંઘી ગયું હતું. તો આ બહુ જ એક ડીપ કવિતા હતી. અને એક મજાની કવિતા મારી બીજી કે આ બધું પણ થશે, એ ગઝલનું નામે રાખ્યું હતું કે આ બધું પણ થશે. એક ગઝલ છે, છેલ્લે ક્યારેક તો હાશ થશે, છેલ્લે ક્યારેક તો હાશ થશે, કાના વગર રાસ થશે. છેલ્લે ક્યારેક તો હાશ થશે, કાના વગર રાસ થશે. ઉઠે હાથ જો મહેનતનો, ઉઠે હાથ જો મહેનતનો, ઝબકારા પહેલા ઉજાસ થશે, ઝબકારા પહેલા ઉજાસ થશે. કહેતો રહ્યો ખુદા તું ખુદને, કહેતો રહ્યો ખુદા તું ખુદને, હવે ખાલી આભાસ થશે, હવે ખાલી આભાસ થશે. ને રાખ હવસ થોડી ગાદલામાં, ને રાખ હવસ થોડી ગાદલામાં, તો દુઃખો પણ રાતમાં ખાસ થશે, તો દુઃખો પણ રાતમાં ખાસ થશે. ને બોલ્યા કરતા આ વખતે કરી દેખાડ, ને બોલ્યા કરતા આ વખતે કરી દેખાડ, ત્યારે તું કદાચ પાશ થશે. પાશ એક બહુ મોટા કવિ થઈ ગયા. એક બીજી ગઝલ છે કે શક્ય છે કે શિકારી મન હજુ ડટાયું નથી, શક્ય છે કે શિકારી મન હજુ ડટાયું નથી, હરણ જળમાં કે યમસ્તું ખોવાયું નથી, હરણ જળમાં કે યમસ્તું ખોવાયું નથી. ને સંબંધોમાં હિસાબ જડે તો કૃપા એની, સંબંધોમાં હિસાબ જડે તો કૃપા એની, બાકી ગણતરી થકી એક હૈયું જોડાયું નથી, બાકી ગણતરી થકી સંબંધોમાં હિસાબ જડે તો કૃપા એની, બાકી ગણતરી થકી એક હૈયું જોડાયું નથી. ને તૈયારી કરો પાનખરની પણ પ્રતીક્ષા નહીં, ને તૈયારી કરો પાનખરની પણ પ્રતીક્ષા નહીં, આંધી પહેલા કદી પણ ધરા પર પછડાયું નથી, આંધી પહેલા કદી પણ ધરા પર પછડાયું નથી. ને ઓરમાયા સંતાન જેવા છે પ્રણયના સપના, ઓરમાયા સંતાન જેવા છે પ્રણયના સપના, હકીકત નામે વાલી છે જે કદી હરખાયું નથી, હકીકત નામે વાલી છે જે કદી હરખાયું નથી. ને મબલક સંખ્યામાં પાછળ દરવાજા ઉઘાડા છે, ને મબલક સંખ્યામાં પાછળ દરવાજા ઉઘાડા છે. પ્રેમમાં તમે શું બોલ્યા એ સંભળાયું નથી, પ્રેમમાં તમે શું બોલ્યા એ સંભળાયું નથી. ને ધુમ્મસ ઢાંકે ને મશાલ એની ઝાંખી કરાવે, ને ધુમ્મસ ઢાંકે ને મશાલ એની ઝાંખી કરાવે, આવું તસમસતું ચુંબન હજુ કરાયું નથી, આવું તસમસતું ચુંબન હજુ કરાયું નથી. ને મહેનત માત્ર ત્યાં સુધી માનેલા વડીલ જેવી લાગે, ને મહેનત માત્ર ત્યાં સુધી માનેલા વડીલ જેવી લાગે, જ્યાં સુધી ઈચ્છા અપેક્ષામાંથી એક મરાયું નથી, જ્યાં સુધી ઈચ્છા અપેક્ષામાંથી એક મરાયું નથી. ને કંઈક તો છે, કંઈક તો છે એની આંખમાં સ્મિતમાં અતીતમાં, ને કંઈક તો છે એની આંખમાં સ્મિતમાં અતીતમાં, નહીં તો આજ લગી ઝમીરથી આટલું બધું લખાયું નથી. અને આજની સાંજની છેલ્લી રચના મારી સૌથી પ્રિય, અને દિનેશ સાથ આપશે. આ કવિતાને વધારે ઇફેક્ટિવ બનાવવા માટે સંગીતનો ઉપયોગ થયો છે, અને આ સોંગ ઘણા બધા મહાન મહાન લોકોએ કમ્પોઝ કરેલા છે. એની અમે ખાલી રચનાની 1 કે 2 લાઈન કે 3 લાઈન લીધેલી છે, અને એને અમે અમારી રીતે કર્યું છે. તો ઓલ ક્રેડિટ્સ ગોઝ ટુ ધેમ, જે લોકોએ કમ્પોઝ કર્યું છે. અમે એને ખાલી અમારી રીતે એક સ્કેલમાં એને લાઈને બનાવ્યું છે.
મને એવું લાગે છે કદાચ હું આ રીતની કવિતા ક્યારે પણ નહીં લખી શકું. અ, ઘણી એવી કવિતા હોય જે ઉપરથી આવતી હોય છે અને એમાં કાગળ પર બેસીને ન લખી શકાય. અહીંયા લખાયેલી હોય પછી તમારે એનો ખાલી ફોટો પાડીને મૂકવાનો હોય છે. તો મને લાગે છે આ કવિતા મેં માત્ર ને માત્ર 8 મિનિટમાં લખેલી અને આ વાક્ય મેં જોયેલો છે વાપી સ્ટેશન ઉપર અને મારી જોડે રહી ગયું હતું. તો મને લાગે છે કે આજની સાંજની અંત આ કવિતાથી થવો જોઈએ. તો શરૂ કરીએ છીએ. લાઇટ્સ થોડી ડીમ કરી શકીએ આઈ થિંક. कारी कारी रहना सारी सो अंधेरे क्यों लाई रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई कारी कारी रहना सारी सो अंधेरे क्यों लाई रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई मंजिलों की राहों में रख दिए गए पत्थर ऐ खुदा तुम है कहाँ जो न हार माने थे सो दिए वो भी थक कर ऐ खुदा तुम है कहाँ क्यों सुनता तू नहीं है क्यों बोलता नहीं है क्यों सुनता तू नहीं है क्यों बोलता नहीं है क्यों ना बोलती ये तेरी लाठियां क्यों सुनता तू नहीं है क्यों बोलता नहीं है क्यों ना बोलती ये तेरी लाठियां कारी कारी रहना सारी सो अंधेरे क्यों लाई आजादी आजादी. पापा मम्मी अभी तक दिखाई नहीं दे रहे. पापा मम्मी अभी तक दिखाई नहीं दे रहे. मेले को खत्म हुए तो 3-4 साल हो गए. मेरे सारे खिलौने भी चोरी हो गए. पर पापा मम्मी अभी तक दिखाई नहीं दे रहे. मेरा 12वां जन्मदिन भी आकर चला गया पर पापा मम्मी अभी तक दिखाई नहीं दे रहे. मैं मेले में खो गया था, बस इतना याद है मुझे. मैं मेले में खो गया था, बस इतना याद है मुझे. फिर यहां अंधेरी गली के टूटे मकान में कैसे आया? लाल रंग की कमीज पहनी थी ना मैंने. फिर बिना कपड़ों के क्यों लिटाया? मेरे वैसे तो यहां दोस्त बन गए हैं. मेरे वैसे तो यहां दोस्त बन गए हैं. अब्दुल, जमील, तितली दीदी और राजू. और हम सब काम करते हैं जैसे पापा करते थे. अब्दुल किटली पर, जमील बस स्टैंड पर, मैं स्टेशन पर, तितली दीदी चांदनी चौक में और राजू वो कहीं काम नहीं करता. दरअसल वो देख नहीं पाता ना, इसलिए रात को अफजल भैया उसे कमरे में लेकर जाते हैं. वो चीखता रहता है, रोता रहता है, पर कोई सुन नहीं पाता ना. हर रोज अफजल भाई हमारे लिए नए नए खिलौने लेकर आते हैं. कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी तो पूरा इंसान लेकर आते हैं. ये घोड़ों और हाथी से तो हम खेलते हैं, पर वो इंसान हमसे खेलता है. वो कहता है कि उसे सबसे ज्यादा मजा मेरे साथ आता है, क्योंकि शायद मैं चीख नहीं पाता ना. मेरी जबान काट दी थी अफजल भाई ने यह कहकर कि तुम्हारे दांतों के बीच में आएगी तो तुम्हें बहुत दर्द होगा. पर उस वक्त उन्होंने यह नहीं बताया कि जब गर्म चाकू मेरी नरम जबान पर चलेगा तब भी तो कितना दर्द होगा.
मुझे स्टेशन पे धुआं निकालती रेल बड़ी पसंद है, पर मुझे वो दिन में सिर्फ 2 दफा देखने की मंजूरी है। ये बाकी का वक्त काम में लग जाता है ना। ये नंगे शरीर को घसीट कर भीख मांगना मुझे पसंद नहीं, और भूख भी तो लगी रहती है। दिन में कपड़े उतारना और रात को लड़कियों की तरह लाली लगाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, नहीं पसंद। मैं दर्दों को पास बिठा कर ही सुन, मैं दर्दों को पास बिठा कर ही सुन, जो तुझे लगता बारिश है वो मैं हूँ जो रोऊं, जो तुझे लगता बारिश है वो मैं हूँ जो रोऊं, मैं दर्दों को पास बिठा कर सुन। पिछले हफ्ते मेरी कमाई जमील से थोड़ी कम थी। अफजल भाई को लगा कि लोगों को मुझ पे दया नहीं आ रही थी, इसलिए मेरे नीचे के हिस्से को काट दिया उन्होंने। पर ऐसा करते वक्त अफजल भाई को भी कहां दया आ रही थी। मुझे बाथरूम जाने में बड़ी दिक्कत होती है। हाफ पैंट लगभग हर बार गीली होती है, बांस मारती है कपड़ों से, कोई बदल के भी नहीं देता। बस एक सज्जन इंसान आकर वड़ा पाव दे जाता है। इस टूटे मकान में तो अन्न देवता भी दिखाई नहीं देता। खुशियों से मिलना भूल गए तुम, इतना क्यों हमसे दूर गए, कोई किरण एक दिन आएगी तुम तक हम को लेकर जाएगी, मैं राह पे आँख बिछा कर ही सोऊं, मैं राह पे आँख बिछा कर ही सोऊं, जो तुझे लगता बारिश है वो मैं हूँ जो रोऊं, जो तुझे लगता बारिश है वो मैं हूँ जो रोऊं, मैं दर्दों को पास बिठा कर ही सोऊं। जमील का भी ऑपरेशन हुआ है, पर उसका पेट का हिस्सा काटा है। अब्दुल का पांव काटा है, एक पांव से लंगड़ा ही था, अब घुटनों पे चले जाता है। पर तितली दीदी, हाँ, तितली दीदी का कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं होता। उसे अच्छे से नहलाया जाता है, मस्करा से सजाया जाता है, और रात को अफजल भाई उसे कहीं बाहर लेकर जाते हैं, और दूसरी सुबह दाई जी के हाथों रुई से उसका बदन साफ किया जाता है। उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, उसकी आंखें खाली, उसके हाथ गर्मियों में भी कांपते हैं, उसके होठ से लहू के फवारे निकलते हैं, उसके कपड़ों पे उल्टी लगी होती है, उसे चलने में बड़ी दिक्कत होती है। हम पूछते अफजल भाई से कि कहां लेकर जाते हो, तो वो कहती है कि लड़ने जाती है वो दुश्मनों से, गब्बस रहे। अब पता नहीं कौन है हमारे दुश्मन। शिवजी की छवि तो पिछले हफ्ते ही उतार फेंकी है। मैं कहां से आया ये तो याद नहीं रहा मुझे अब, पर मेरे घर एक लकड़े का झूला हुआ करता था। मेरी स्कूल में भी एक झूला होता था। मम्मी हर रोज शाम झूला झूलाती थी, पापा भी रात को खाने के बाद झूला झूलाते थे। इतवार को हम सब साथ झूला खाते थे। पर एक दिन मैंने जिद की कि मुझे बड़ा सा झूला चाहिए, तो पापा मम्मी मुझे मेले में लाए थे। वहां बड़े बड़े गुब्बारे भी खरीद लाए थे।
हम सब बड़े से झूले पे बैठे थे, बगल में अफजल भैया भी बैठे थे। अफजल भैया ने मुझे चॉकलेट दी और मम्मी ने खुशी में हाथ जोड़ रखे थे। तभी दूर से कोई आवाज आई और पापा मम्मी उस तरफ भागे। मैं चिल्लाता रहा, मुझे भी लेकर जाओ, पर वो लोग सुन नहीं पाए। दूसरे ही पल मैंने अपना हाथ अफजल भाई के हाथ में देखा और दूसरी सुबह इस टूटे मकान को देखा। वो आखिरी दिन था जब मैंने पापा मम्मी को देखा। तेरी वो बातें याद सुना, बैठूं सिरहाने लोरिया में गाऊं, राहें तकती हैं ये अटारी, तीजों की घड़ियां सुनी ही गुजारी, सारे नजारे ये बहारे हैं तुझी पे वारे, अरे यार यार यार, अरे यार यार, अरे यार यार। अब तो मैं चीख भी नहीं पाता, इसलिए 99 बार ये खत लिख रहा हूं। पापा मम्मी का ठिकाना नहीं पता, इसलिए नाव बनाकर नाली में बहाते रहता हूं, शायद कहीं पहुंच जाए। मुझे मम्मी से लिपटकर उसकी साड़ी में रोना है, पापा के शर्ट से धूल हटाकर खेलना है और मेरे घर के लकड़े के झूले पर पूरी रात कितने सालों के बाद अकेले सोना है। पर तितली दीदी कहती रहती है कि सीने में इंसान बचा के रखना। हाँ, वो कहती है कि सीने में इंसान बचा के रखना, निकलेंगे हम यहां से, तुम कुछ रुपए जमा करके रखना, तुम्हें नीचे दर्द कम हो जाएगा, बस बार बार वहां छूते मत रहना, तुम्हें नीचे दर्द कम हो जाएगा, बस बार बार वहां छूते मत रहना। और सुनो, ये भगवान तो अफजल भाई के अंदर भी है, उनका सो गया है, तुम अपना जगा के रखना। और ये भगवान तो अफजल भाई के अंदर भी है, उनका सो गया है, तुम अपना जगा के रखना। और नींद नहीं आती फिर भी सो जाओ, कम से कम अंधेरा आंखों से हटा के रखना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस दफा यकीन बनाए रखना। मुझे इन सब का मतलब तो समझ नहीं आता, पर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सो जाता हूं, खत को नाली में बहाकर। मेरे एक भी खत अब नाली में दिखाई नहीं दे रहे, मेरे एक भी खत अब नाली में दिखाई नहीं दे रहे। मतलब पहुंच तो गए हैं कहीं, पर पापा मम्मी अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। ये अंधी चोट तेरी कभी की सूख जाती, मगर अब पक चलेगी हो। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम
साथ हंस पड़ेगी। हाँ। इस आखिरी खत में मैंने सिर्फ 2 हर्फ लिखे थे, आजादी, आजादी।